Okay, screen is visible. Yes, ma'am. Okay, start the prayer. Lord of all power and might, give me wisdom and understanding today. Let me grow in knowledge and bear fruit in active goodness. Strengthen me with ample power to meet whatever comes with fortitude, patience, and joy, to give thanks to you in all things. Amen. Okay. Okay, now screen is visible. Yes, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So in the last class we have discussed about the air pollution and the noise pollution. Okay. So today we will discuss the different type of control devices for to control the pollution, and also we'll start with the next, that is the water pollution. Okay. So we are having the different type of devices like gravity setting chamber, bag filters are there, electrostatic precipitators are there, cyclones separators are there. Okay, so and scrubber, these are the different type of devices that we use to control the pollution. Okay, so first of all, as you can see in the picture, first one is the gravity setting chamber. As you can see in the picture, this one is the gravity setting chamber. This is the simplest type of device. Okay, and उसने कहा it is a, this is the simplest and oldest type of particulate collector. Okay, where the gas is passed into a chamber. You can see कि ये chamber है, where is gas, जिसमें gas जो है उसने pass through a chamber which is large enough to permit gas velocity to decrease so that dust or droplets settle. ठीक है, गैस यहाँ से एंटर करती है. अब उसने कहा कि उसने कहा जो टैंक है, ओके, गैस इज पास्ड इनटू ए चैम्बर व्हिच इज लार्ज इनफ, वो इतना बड़ा है, उसने लार्ज इनफ टू परमिट गैस वेलोसिटीज टू डिक्रीज, गैस वेलोसिटी जो वो डिक्रीज होगी सो दैट द डस्ट और ड्रॉपलेट्स जो हैं, पार्टिकल्स हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. सो इसको इसलिए बोलते हैं ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है. उसने कहा सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट टाइप का पर्टिकुलेट कलेक्टर है जिसमें से गैस जो है इज पास्ड इनटू ए चैम्बर. ये सारा चैम्बर है, ठीक है, गैस जो डर्टी गैस पास्ड इनटू ए चैम्बर, उसका विच इज लार्ज इनफ, ठीक है, विच इज लार्ज इनफ टू परमिट गैस वेलोसिटीज, जो भी गैस वेलोसिटी को कम करेगा तो धीरे धीरे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे एंड द क्लीन एयर जो है वो यहाँ से, उसमें क्लीन एयर जो है यहाँ से निकल जाएगी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. Okay, so this chamber is usually in the shape of a horizontal rectangular tank की shape में है, that you can see it is a shape is like a horizontal rectangular tank. और इसमें क्या पार्टिकल जो साइज है इसमें 40 to 100 millimeter in diameter are collected near the bottom under the influence of gravity. Okay, so particle size कितना 40 to 100 millimeter are collected near the bottom under the influence of gravity. An important thing about this is that the device is not suitable for fine particles. जो fine particles होते हैं, छोटे particles हैं, उनके लिए suitable नहीं है because which require longer settling time. उनको ज़्यादा settling time चाहिए. Hence for them the efficiency is very poor. इसलिए fine particles इसके लिए this device जो gravity setting chamber है, this is not suitable for the fine particles क्योंकि उसमें ज़्यादा settling time चाहिए होता है. And उनके लिए जो efficiency है वो poor है इस device की. But on the other hand, these devices are inexpensive, reliable and easy to maintain. Okay, these are inexpensive, reliable and easy to maintain. और basic process इसमें क्या है? That is the gravity setting chamber means कि gravitational जो influence, gravitational जो force का influence है उसके अंदर जो है particle जो है नीचे settle down हो जाते हैं. So this is very simple कि गैस यहाँ से पास होगी, लार्ज टैंक है, वेलोसिटी जो है एयर पार्टिकल्स की है वो जहाँ टैंक के अंदर कम हो जाएगी, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, क्लियर यहाँ से पास हो जाएगी. बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो है बड़े पार्टिकल्स के लिए ज्यादा सूटेबल है. एंड दिस डिवाइस द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सिंपलेस्ट एंड ओल्डर टाइप पार्टिकुलेट कलेक्टर. ओके, एंड इट इज इनएक्सपेंसिव, रिलायबल एंड इजी टू मेंटेन.
Next one, we are having the bag filters. Okay, as you can see in the picture, this one is the bag filter. Bag filter का जो process, जो procedure है उसमें, it consists of an assembly of large fabric filter bags. ठीक है, इसमें फैब्रिक के फिल्टर बैग्स होते हैं. ओके, जो फाइबर्स के बने होते हैं, मीन्स इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि नाम ही है बैग हाउस फिल्टर. ओके, यहाँ बैग हाउस फिल्टर बोलते हैं या बैग फिल्टर्स बोलते हैं. इसमें बैग होता है. इट कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ लार्ज फैब्रिक फिल्टर बैग्स. ओके, फैब्रिक के फिल्टर बैग्स होते हैं मेड अप ऑफ फाइबर्स. ओके, जो बैग है वो किससे बना है? फाइबर से, जो ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, विच ट्रैप पार्टिकल्स बाय मेकिंग द एयर पास थ्रू द फैब्रिक. जो जब एयर पार्टिकल्स जो है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो बैग है इसमें फैब्रिक्स हैं. ठीक है, तो जब एयर जो है इसमें से क्लीन डर्टी एयर पास करेगी तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फाइबर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और जो क्लीन एयर है वो यहाँ से पास हो जाती है. सो दीज आर द लार्ज साइज पोरस बैग. ये पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, इन फैब्रिक के बने होते हैं. Okay, and dirty air is passed under pressure through the porous filter before its final submission into the atmosphere. Okay, so dirty air जो इन fabrics में से pass होती है और वो फिर finally जो clean air है वो निकल जाती है. Particulate matter over 50 mm size is filtered by these devices. Okay, और इसमें से 50 mm जिनका size है वो that is filtered by these devices. Okay, सो दिस इज द बैग हाउस फिल्टर. उसमें क्या जो इसका शेप है, उसका टिपिकल बैग हाउस कंप्राइज ऑफ एन एरो ऑफ लॉन्ग नैरो बैग्स 100 इंच इन डायमीटर सस्पेंडेड अपसाइड डाउन इन ए लार्ज इंक्लोजर. यू कैन सी इसका सस्पेंडेड अपसाइड डाउन, नीचे की तरफ होते हैं इन ए लार्ज इंक्लोजर. और इसमें डस्ट लेडन एयर इज ब्लोन अपवर्ड थ्रू द बॉटम ऑफ द इंक्लोजर बाय मीन्स ऑफ फैन. और बाद में क्या होता है कि जो डस्ट फैन की हेल्प से जो डस्ट लेडन जो होती है, उसका डस्ट लेडन एयर इज ब्लोन थ्रू द बॉटम ऑफ द इंक्लोजर बाय मीन ऑफ फैंस एंड द पर्टिकुलेट मैटर इज ट्रैप्ड इनसाइड द हैंगिंग फिल्टर. ये जो हैंगिंग फिल्टर्स हैं, ये हैंगिंग है उसमें अपसाइड डाउन. ओके, हैंगिंग फिल्टर्स में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं. And while the clean air passes through the fabric at the top of the bag house, यहाँ से जो clean air है वो निकल जाती है. Okay, so this is all about the bag house filter or bag filters. Then you are having the electrostatic precipitator. Okay, are you all getting? Yes, just give me the response. Yes, ma'am. Okay, so next one here is the electrostatic precipitator. So these are the very efficient devices. Okay, it is a versatile and efficient type of collector that works on the principle of electrostatic attraction. Okay, so it is a versatile means कि many type के particles जो है इसमें से remove होते हैं. And efficient type of collector that works on the principle of electrostatic attraction and operate over 540 degree Celsius. इसमें high voltage देते हैं, operate over 540 degree Celsius for removing dry particulates. Okay, so these are very efficient devices which remove 99% of particulate matter present in the industrial and thermal power plants. Okay, ये सबसे efficient है क्योंकि there is a electrostatic force of attraction. तो वो सभी जो charge है वो particles को attract करता है. तो 99% जो particles हैं वो remove हो जाते हैं, जो भी industrial और thermal power plant के जो भी polluted air होती है उसके particles. ओके, तो सिलेक्ट रिमूव पार्टिकल बाय पुटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन देम. ओके, पार्टिकल्स पे जो है क्योंकि हाई वोल्टेज से पार्टिकल्स को पास करवाएंगे तो उस पे क्या होता है कि वो चार्ज गेन कर लेते हैं. ओके, उसमें इट रिमूव पार्टिकल्स बाय पुटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन देम थ्रू इंड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड देन अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोड ऑफ ऑपोजिट चार्ज. उनको पहले चार्ज देना है और फिर उनको ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जो है पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे. द पोल्यूटेड गैस इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड्स ऑफ हाई वोल्टेज. ओके, उसको हाई वोल्टेज देके polluted gas is passed through electrodes. Okay, polluted gas को as you can see in the picture, this is the electrostatic precipitator. तो ये जो charge particles हैं उनको जो polluted gas है उसको high voltage, polluted gas is passed through electrodes of high voltage. electrodes में high voltage है, उसमें से polluted gas को pass करवाएंगे तो उसमें वो क्या करती है, charge discharge, उससे वो charge gain करती है. and a grounded electrode where the aerosol particle acquire charge when subjected to an electric field. अब उसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स यहाँ से जो है इलेक्ट्रोड से पास करेंगे. ओके, इलेक्ट्रोड्स को हमने हाई वोल्टेज दी हुई है और पार्टिकल्स क्या करेंगे जो है
हाई वोल्टेज दी हुई है तो पार्टिकल जो है चार्ज गेन कर लेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, अपोजिट जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से जो यानी गैस पर्टिकुलेटेड इन एयर एंड कलेक्टेड पार्टिकल्स यहाँ से आएंगे। ओके, सो इन दिस वे क्लीन एयर, यहाँ से जो क्लीन गैस जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोड से पास करवा रहे हैं, जिसमें उसने क्या किया हुआ है, उसने polluted gas is passed between the electrodes of high voltage, हाई वोल्टेज से पास करेंगे, वो चार्ज गेन कर लेंगे और फिर वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पार्टिकल वहीं पे रह जाएंगे और क्लीन एयर जो है वो निकल जाएगी। ओके, दिस हेल्प इन ड्राई कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एफ्लुएंट गैस विद 99.9% एफिशिएंसी है एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पार्टिकुलेट पोल्यूशन। ओके, तो उसमें क्या इंक्लूडिंग दोज में डायमीटर 1 माइक्रोन से भी कम होगा, उसमें भी इनमें एफिशिएंसी है, उनको भी रिमूव करने की। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर दीज चार्ज पार्टिकल आर कनेक्टेड विद ग्राउंड, फिर वो नीचे जो है नीचे कलेक्ट हो जाएंगे चार्ज पार्टिकल। द इलेक्ट्रोड वायर्स आर प्रोवाइडेड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, हियर स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन डर्टी एयर आर फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिकली एंड देन अलाउड टू सेटल डाउन डिफरेंटली चार्ज स्क्रबर्स। ठीक है, सबसे पहले तो चार्ज उसने स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन डर्टी एयर फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिकली, हमने उनको सिर्फ चार्ज देना पार्टिकल्स को, जब उनको चार्ज देंगे तो अगर उसके बाद क्या होगा कि वो अपोजिट अपने जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो क्लीन एयर है फिर वो निकल जाएगी। ओके, और ये बेसिकली यूज होता है गैसियस पोल्यूटेंट। ये जो ड्राई और वेट दो टाइप के हैं स्क्रबर्स जो हैं, आगे हम स्क्रबर्स देखेंगे तो उनको दो टाइप के होते हैं, ड्राई और वेट स्क्रबर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट यू आर हैविंग द साइक्लोन सेपरेटर। Okay, this is also important, the cyclone separator. Okay, so these devices are fixed in the industries at a place where particulate rich air is passed through these devices before its final submission. Okay, उसने कहा ये जो devices हैं ये different, जितने भी आपके devices हैं different type की industries में fix करवाए होते हैं, जो आपके electrostatic precipitator है, bag filters हैं, gravity setting chambers हैं। तो साइक्लोन कलेक्टर सेपरेटर में क्या, these devices are fixed in the industries at a place where particulate rich air is passed through these devices. ओके, जो रिच एयर है वो पास होगी these devices से बिफोर इट्स फाइनल सबमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो साइक्लोन कलेक्टर है सिलेंड्रिकल, इसकी शेप कैसी है, यू कैन सी इन द पिक्चर, cylindrical shape collector which operate on the principle of centrifugal force. Okay, ये जो साइक्लोन सेपरेटर है या फिर साइक्लोन कलेक्टर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप यू नो कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब आप किसी चीज को बड़ी जोर से घुमाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, तो उसने क्या, the dust laden air is subjected to flow in a tight circular spiral path which produces centrifugal force on the particles, and inertia of the particle forces them to move out of the gas stream towards the wall from which they drop into a hopper at the bottom. ओके, उसने कहा कि हम क्लीन जो गैस पार्टिकल है यहाँ से पास करवाएंगे। गैस किसमें से पास करेगी, क्योंकि ये जो स्पाइरल पाथ है, ओके, उसमें डस्ट लेडन एयर गैस इज सब्जेक्टेड टू फ्लो इन ए टाइट सर्कुलर स्पाइरल पाथ, मतलब पूरे जो एयर है वो सर्कुलर स्पाइरल पाथ में जोर जोर से घूमेगी, उससे वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, लाइक यू हैव सीन कि जब आप किसी रोप को किसी स्टोन को उस पर रोप बांधते उसको जोर से घुमाते हो ना, तो वो जो पत्थर जो है वो जो स्टोन है वो पूरे घूमता है, तो डेट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि आप उसको जोर से घुमाते हो। ओके, तो उसने क्या, जो हमारा घर में जो हम ये घी बनाने का जो प्रोसेस होता है, दैट आल्सो बेस्ड ऑन दिस की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। ओके, तो उसने कहा डस्ट लेडन एयर इज सब्जेक्टेड टू फ्लो इन ए टाइट सर्कुलर पाथ व्हिच प्रोड्यूसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करता है ऑन द पार्टिकल्स के ऊपर, एंड द पार्टिकल जो है उसके पार्टिकल्स फोर्सेस टू मूव आउट ऑफ द गैस, पार्टिकल जो है वो गैस से मूव करके नीचे की तरफ जो है वो सेटल हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज साइक्लोन कलेक्टर, कलेक्टेड पार्टिकुलेट्स आउट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये जो बेसिकली साइक्लोन कलेक्टर क्या है ये सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा है, और सर्कुलर पाथ जो है उनको क्या दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने से जो पार्टिकल्स हैं जो क्या होंगे, वो कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, और जो क्लीन एयर है यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, like you have seen in the milk when you made ghee from the milk, जब आप घर पे बनाते हो from the
क्रीम जो है, तो उसमें जब आप उसको घुमाते हो तो जो ऊपर की तरफ यू कैन सी कि जो उसमें बटर होता है वो ऊपर की तरफ जो कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है, एक साइड पे जो है कलेक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो मतलब कलेक्ट होता है। तो सेम यही प्रोसेस है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, एंड क्लीन एयर राइजेस थ्रू द सेंटर ऑफ द हेलिकल, जो क्लीन एयर है वो ऊपर से राइज होगी एंड इज रिमूव फ्रॉम द टॉप। ओके, सो क्लीन एयर को ऊपर से रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, okay, next we are having the scrubber. Okay, so scrubbers it is used to remove harmful gases like sulfur dioxide from the industrial exhaust. The exhaust is passed through a stream of lime or water. Water dissolves the gases and lime react with sulfur dioxide to form a precipitate of calcium sulfate and sulfite. Okay, this is very simple. ये dirty air यहाँ से pass होगी, यहाँ पे just try to understand, dirty air यहाँ से हमने pass करवानी है और यहाँ particulate जो है dirty air यहाँ से दे दी, यहाँ से हमने, इसमें दो प्रोसेसेस हैं। स्क्रबर को हम यूज करते हैं या तो सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए। ओके, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, वाटर। ठीक है, यहाँ से डर्टी एयर, यहाँ से हम वाटर के ड्रॉप्स यूज करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो दोनों मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, उसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ओके, इट्स फॉर्म्स द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो डर्टी एयर है, इसलिए स्क्रबर को हम यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को रिमूव करने के लिए, स्क्रबर को। ओके, तो डर्टी एयर के अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यहाँ से हमने क्या, ये जो प्रेजेंट है यहाँ से हमने क्या दिया, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स। तो ये डर्टी एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और वाटर। ओके, SO2 प्लस H2O इट फॉर्म्स द सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। तो इसकी हेल्प से सल्फर डाइऑक्साइड जो है एयर से रिमूव हो जाएगा, हम यहाँ से क्लीन एयर को रिमूव करवा देंगे। ओके, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें हम लाइम यूज करेंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम मीन जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देंगे, उसको हम पर्टिकुलर मैटर को सेपरेट कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके, सो स्क्रबर को हम बेसिकली यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आई एम रिपीटिंग अगेन, सल्फर डाइऑक्साइड, जिस गैस में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, डर्टी एयर को यहाँ से पास करें। फर्स्टली जस्ट टॉकिंग अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड, डर्टी एयर को पास करवाना है, डर्टी एयर कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ से हम वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रोवाइड करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड और क्लीन एयर यहाँ से पास हो जाएगी। सेकेंडली वी आर हैविंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर डर्टी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के टाइम हम क्या यूज करेंगे, लाइम स्प्रे। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमने वाटर यूज किया, उसके लिए हम लाइम स्प्रे यूज करेंगे। लाइम क्या होता है, सल्फर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ओके, सो CaO2 एंड CaOH2 जब रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, सो क्लीन एयर यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द स्क्रबर। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Okay, then you are having the catalytic converter. कैटालिटिक कन्वर्टर जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैटालिटिक कन्वर्टर जो है हमारे जो बाकी डिवाइसेस हैं उनको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, जो भी हमारे पावर प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, लेकिन जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं इनको हम यूज करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में। ओके, सो कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स। इसमें बेसिक प्रोसेस क्या होता है, उसमें these are the devices having expensive material. Okay, just try to understand. ये जो डिवाइसेस होते हैं, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाकी जो हमारे डिवाइसेस थे उनको हम इंडस्ट्रीज में सेटअप, उनका वहां पे होता है, सेट किए होते हैं इंडस्ट्रीज में, लेकिन जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं ये ऑटोमोबाइल्स में हमारे यूज होते हैं। ओके, तो अब उनके दीज आर द डिवाइसेस हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स। इन डिवाइसेस के अंदर एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे प्लेटिनम, पैलिडियम, रोडियम एज कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो भी हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर उनके अंदर ये प्रेजेंट होंगे, प्लेटिनम, पैलिडियम। ठीक है, अब उसने क्या है, जब उसमें से डर्टी एयर जो है इन कैटलिस्ट में से पास होगी, ठीक है, ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, डर्टी एयर को हार्मफुल सबस्टांसेस को हार्मलेस सबस्टांसेस में चेंज करते हैं। ये कैटलिस्ट है प्लेटिनम। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर प्लेटिनम प्रेजेंट है, पैलिडियम प्रेजेंट है, रोडियम जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, सो
ये कैटलिस्ट है। जैसे आपके बायो में बायो कैटलिस्ट होते हैं ना, एंजाइम्स, एंजाइम क्या करते हैं, किसी रिएक्शन को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो प्लेटिनम है, पैलिडियम है, ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। हार्मफुल गैसेस को, जो भी ऑटोमोबाइल्स में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उनको हार्मलेस में चेंज करते हैं ये वाले जो कैटलिस्ट हैं, ठीक है, पैलिडियम, रोडियम एंड प्लेटिनम। ओके, सो कैटालिटिक कन्वर्टर आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स. Major cause of air pollution in metro cities for reducing emission of poisonous gases like carbon monoxide and nitrogen dioxide. Okay, so catalytic converter using as the exhaust, उसने as the exhaust pass through the catalytic converter. जो भी एग्जॉस्ट है उसने क्या पास कैटालिटिक कन्वर्टर से जो गैसेस होती हैं पास होती हैं, तो क्या चेंजेस होते हैं? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, अनबर्न्ड, ओके, हाइड्रोकार्बन जो प्रोड्यूस हुआ जो हार्मफुल था वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, दैट इज हार्मलेस. Carbon monoxide and nitric oxide, that is also harmful, are converted into CO2 and nitrogen gases respectively. Okay, and vehicles fitted with catalytic converter जो है उसमें, इन व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो फिट होते हैं. उसमें जो ये कैटलिस्ट हैं वो उनको करते हैं कि इन चीजों को, जो हार्मफुल हमारी गैसेस हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, उनको हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं. और मेन इंपॉर्टेंट इस फिनोमिना इसमें क्या है कि इसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट है, और कैटलिस्ट का काम क्या है कि हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज करना. ओके, so clear. So motor vehicle equipped with catalyst should use unleaded petrol, as lead present in petrol inactivate the catalyst. Okay, उसमें अनलीडेड पेट्रोल होता है क्योंकि अगर लेड प्रेजेंट होगा तो वो इनएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को. ओके, बट इंपॉर्टेंट थिंग आपने इसमें याद रखनी है कि हम कैटालिटिक कन्वर्टर को ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट. जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होंगे हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज करेंगे. ओके, so this is all about the catalytic converter. Okay, so Excuse me, ma'am. हाँ, yes. मैम ये जो आपने जितने भी फिल्टर्स सेपरेटर्स बताए मैम, ये 100% एफिशिएंट होते हैं? मतलब जितनी भी एयर होगी वो टोटली बिल्कुल भी नो नो नो, सब नहीं नहीं, ये सारे नहीं होते हैं. बड़े जो है, जैसे आपके ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर है तो उसमें आपको 100% श्योरिटी नहीं होती. जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वो आपका सबसे एफिशिएंट है, ठीक है, वहां पे आपको 99% जो है वो होती है कि आपके पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आप चार्ज दे रहे हो. जब आपने चार्ज दिया तो डेफिनेटली पार्टिकल जो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज. लेकिन बाकी जो है, जैसे आपके ये जो है ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर है या बैग फिल्टर्स है, उसमें होते हैं लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती उसके अंदर कि वो रिमूव होंगे. मोस्ट एफिशिएंट वन इज द साइक्लोन कलेक्टर भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है. और बाकियों में जो है हमने लिखा है ना वहां पे कि 20% होता है, 30%. अगर आप पढ़ोगे तो ये है कि इतने परसेंट जो है वो रिमूव करता है, 50% करेगा, 40 करेगा, 50 करेगा, लेकिन 99% सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जो है वो श्योरिटी होती है क्योंकि उसमें आप स्पेसिफिकली चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो. ओके ओके मैम. ओके okay, so this is all about the electrostatic precipitator. Okay, just try to understand these devices are very very important. Okay, so you have to learn कि कौन कौन से devices जो हम particulate pollutant के लिए, gases pollutant के लिए use करते हैं. Okay, so these are the different type of devices. Water pollution will start in the next class only. Okay, so any question is there? Yes, please tell me any question is there. Okay, anything you want to ask? Say yes or no fast. No, ma'am. Okay, so if you don't have any question, you all can leave the class.